Assalamualaikum everyone, welcome back to Learning Notes. In today's video, we are going to learn a very important topic in English grammar, gerund and infinitive in English grammar. Many students get confused about when to use verb plus ing and when to use to verb. For example, we say I enjoy reading book, but we say I want to read a book. Okay, I want to read a book. Why do we use reading in one sentence and to read in the other? Don't worry, in today lesson I will explain gerund and infinitive with easy rules and examples. So let's get started. Gerund and infinitive. First of all हम देखते हैं कि gerund and infinitive है क्या. gerund मीन के जब हम किसी काम को और उसके नाम को बनाकर इस्तेमाल करते हैं, काम को काम का नाम बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसे gerund कहते हैं. मीन्स के फॉर्मल से आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि वर्ब है, ing है, वर्ब ing, जहाँ वर्ब ing को मिला कर gerund बनता है. gerund क्या है? वर्ब और ing. ठीक है. यहाँ रीड मीन के अगर हम रीडिंग है कोई सेंटेंस में, जैसा कि कोई सेंटेंस देखते हैं कि आई रीड बुक. क्या रीड बुक जो है, यहाँ रीड जो है वो काम है और एंड जो मीन के नाउन वो है मैं किताब पढ़ता हूँ. आई रीड अ बुक अगर एग्जाम्पल है तो जो रीड है वो काम है और जो मीन के नाउन है मैं किताबें पढ़ता हूँ वो नाउन है. यहाँ रीडिंग किसी काम को बतौर चीज़ या नाम बयान कर रहा है. मसलन जो रीडिंग है वो हमारा gerund है, काम है. ठीक है. अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. वर्ब ing इज इक्वल टू gerund है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, डांसिंग, लर्निंग. लेट्स लुक एट सम सेंटेंस. रीडिंग इन माई फेवरेट हॉबी, स्विमिंग इन गुड एक्सरसाइज, learning English is important. In this sentence, reading, swimming and learning are gerund because they are functioning as noun. Gerund as the subject. A gerund can be used as the subject of a sentence. Subject में ये sentence में subject के तौर पे इस्तेमाल होता है. For example, reading improves your vocabulary, writing require practice, and है जी learning English takes time, working is good exercise. Here reading, writing, learning and working are gerund. Gerund as the object. A gerund can also be used as the object after certain verb. For example, I enjoy reading. She likes dancing. They love playing football. He finished doing his homework. Here, the word readings, dancing, playing and doing are gerund. मीन का जो gerund है वो है क्या? वो मीन के ing यूज़ होता है. इसका हमने स्ट्रक्चर देखा अभी. वर्ब और ing जहाँ यूज़ होता है उसको gerund भी कहते हैं. ठीक है. जिस टेंस के साथ जिस वर्ड के साथ ing लगा हुआ है ये सब gerund है. ठीक है. verbs followed by gerund. Some verbs are commonly followed by a gerund. For example, enjoy, avoid, finish, suggest, admit, consider, practice, keep, mind and miss. Let's look at some example. I enjoy reading book. She avoid talking to stranger. He finished doing his homework. And important rule इसका देख लेते हैं. After this verb we generally use verb और ing यूज़ होता है. verb और ing को हम gerund ही कहते हैं.
आई इंजॉय रीडिंग, ठीक है, इसमें ये देखो आई यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड आफ्टर preposition है जी। another important rule is preposition and plus gerund. After a preposition we normally use verb and ing. For example, she is good at speaking English. I am interested in learning English. Thank you for helping me. So remember, preposition plus verb minus ing, ठीक है। But is an इन्फिनेटिव। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव जो जीरेंड है उसमें तो हमने देखा कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वो जीरेंड है। अब इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव होता है जी आमतौर पर टू प्लस वर्ब, टी और टू यूज़ होता है प्लस वर्ब के साथ। वर्ब की पहली शक्ल होती है, मीन के वर्ब की पहली फॉर्म होती है और इसे किसी काम, मकसद, ख्वाहिश या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इरादे को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आई वेंट टू लर्न इंग्लिश। आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आई वेंट टू लर्न इंग्लिश है, यहाँ जो इन्फिनेटिव है वो टू लर्न है। टू लर्न जो है वो इन्फिनेटिव है और ये इस्तेमाल क्यों होता है? किसी काम की ख्वाहिश, इरादे, मकसद या ज़रूरियात को बयान करने के लिए हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मीन के स्टडी जो है इसमें आई वांट टू स्टडी ख्वाहिश का इजहार है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन्फिनेटिव मीन के इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, टू यूज़ होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसे किसी काम, मकसद, ख्वाहिश के इजहार के लिए, इरादे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी infinitive, and infinitive is usually formed with two plus base form of the verb. टू यूज़ होता है बेस फॉर्म दी वर्ब के साथ। द बेस फॉर्म मीन्स वर्ब वन, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड, टू राइट, टू लर्न, टू प्ले, टू स्पीक, टू स्टडी। सेंटेंस देख लेते हैं। आई वेंट टू लर्न इंग्लिश, she decide to study. Verb formed by infinitive. Some verb are commonly followed by an infinitive. For example, want, need, decide, hope, plan, promise, agree, refuse, learn and try. Let's see some example. I want to learn English. She decided to study harder. We hope to win the match. Infinitive to show purpose इसमें है, purpose है, and infinitive can also be used to purpose of an action. For example, I went to the market to buy some fruits. She studies hard to pass the exam. He went to the library to study. Here, to buy, to pass, to study and to say show the purpose of the action. Gerund with gerund and infinitive, ये क्या है? Now let's understand the basic difference. इसका डिफरेंस देख लेते हैं। gerund और infinitive होता क्या है, मीन के अलग अलग इसका डिफरेंस क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। gerund जो है वर्ब प्लस ing यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, लर्निंग। और इन्फिनेटिव जो है उसमें टू यूज़ होगा वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू रीड, टू राइट, टू स्विम, टू लर्निंग। gerund में ing और वर्ब यूज़ होगा, और जो है इन्फिनेटिव है उसमें टू यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखो, टू रीड, यहाँ पे रीडिंग है, नो टू, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। gerund वर्ब ing एंड इन्फिनेटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि टू रीड, टू राइट, टू स्विम, टू लर्न, ठीक है। वर्ब दैट कैन टेक बोथ, सम वर्ब कैन बी followed by either a gerund or infinitive. For example, like, love, hate,
prefer, start, being, and continuous. For example, I like reading, I like to read book. Both can be correct depending on the context and intended meaning. Example, she started learning English, she started to learn English. ये होगा, ठीक है. स्टॉप gerund, स्टॉप इन्फिनेटिव. स्टॉप प्लस gerund और स्टॉप प्लस इन्फिनेटिव. अच्छा ये देखें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं. स्टॉप gerund in it means to stop doing an action. He stopped smoking. This mean he quit the activity. मीन कि एक्टिविटी है उसको स्टॉप किया गया है. ये इसकी एग्जाम्पल. स्टॉप इन्फिनेटिव, it means to stop one activity in order to do something else. He stopped to answer the phone. Remember gerund and infinitive. Remember gerund को कैसे याद रख सकते हैं हम. It refer to remembering something that happened in the past. I remember meeting him. Remember infinitive है, ठीक है. इन्फिनेटिव, रिमेंबर इन्फिनेटिव क्या है. इट मीन्स रिमेंबरिंग दैट यू नीड टू डू समथिंग. रिमेंबर टू कॉल मी. सो रिमेंबर मीटिंग हिम. रिमेंबर अ पास्ट एक्सपीरियंस. इसकी कॉमन मिस्टेक देखते हैं, आपको समझ आएगी. आई इंजॉय टू रीड बुक. नो, आई इंजॉय रीडिंग अ बुक. रीडिंग आएगा, बुक, ठीक है. शी डिसाइड स्टडिंग इंग्लिश. नो, शी डिसाइड टू स्टडी इंग्लिश. एंड इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. आप लोगों को टेंस हैं ये कुछ. इसको देखें. आई इंजॉय डैश बुक. आई इंजॉय रीडिंग टू. आई इंजॉय टू रीड बुक्स. नो, आई इंजॉय रीडिंग बुक. शी डिसाइड डैश इंग्लिश. She decided to learn English. He avoided the question. He avoided answering the question. ठीक है. They went dash football playing to play. They went to play football. We hope the match winning to win. We hope है, ये देखो hope यहाँ से पता चल रहा है. hope ये आएगा, इन्फिनेटिव है. इसमें मीन के सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसके साथ टू लगेगा, जिसके साथ आईएनजी है. अवॉइडेड टू क्वेश्चन, इसके साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है. अवॉइडेड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है. इसके साथ टू भी लगेगा, जिसके साथ आईएनजी है वहाँ पे आईएनजी, वहाँ पे टू नहीं आएगा. ये इसका डिफरेंस है, ठीक है. I hope this lesson has made gerund and infinitive easy for you. Thank you for watching. Allah Hafiz.